my God, a big hand, everybody! A big hand. And thank you, Akshay, Rajbir, Divya. This was one wonderful act. So everybody, once more. Okay, they're saying once more. So what do we do, actors? Ooh, yes, that is something unique. I know you have not seen before. So what's the actors? Yeah? Okay, it's not easy. Anyways, I would like to thank our actors, one more, Akshay, Rajbir and Divya, for this wonderful act, and our singer, Mr. Vardhan Singh, who has sung this song. Thank you for calling us here. It's a beautiful event. Thank you to our producer, director, Shantiniketan Films. And we are really privileged to have been a part of this musical journey, because it's a very different concept. This film is amazing. It's a real challenging film for everyone. All the composers that have been a part of this film have really done a great job, and we were so lucky that we got this opportunity, and we had a great chance to work with such a legendary singer. I'd just like to call upon all our producers, directors, and also I think this is the first time that such a bold subject is coming out for all you people, and I think Ishq Junoon is such a powerful film, and I think ये एक वो concept है जो लोगों के सामने पहली बार आएगा, लेकिन यूथ जो आज की जो यंगस्टर्स है वो लोग आई थिंक इस तरह की चीज़ों में इंडल्ज कर रहे हैं. ये फिल्म में एक बहुत अच्छा सोशल मैसेज भी है जो आप लोग जब देखेंगे तब आपको रियलाइज होगा. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट न्यू बिगिनिंग फॉर अ फैंटास्टिक फिल्म. Thank you, sir. Thank you for sharing your views. And we all are excited, as you all. We want to know the song, more about this song. And as of now, let's see the song on screen, please. Nasiba? Sure. That'll be great. Yes. Let's see the song on screen. Everybody, song for all of you, Nasiba by Rekha Bhadwaj. Do you want to first watch the song? क्या आप लोग गाना देखना चाहेंगे? उसके बाद हम लोग दो लाइन गा लें? चलिए ठीक है संजीव. With Sir singing some lines of the song, and after we will play the video, I would like to tell you all, we have some more songs lined up after this song, which is by Ankit Tiwari, Mr. Jeet Ganguly. So be here and enjoy all the songs which will be playing after this. And yes, please be ready, because after we play all the songs, we are having a little surprise for you, which is hotter, which is steamier. So वो सरप्राइज क्या है वो ये सॉन्ग्स के बाद हम आपको रिवील करेंगे. सो होल्ड योर ब्रेथ और सोचते रहिए क्या सरप्राइज है. एज ऑफ नाउ वी हैव सर विद अस. बिग हैंड फॉर सर वंस अगेन एवरीबॉडी. Good afternoon everybody.
this song, Sanjeev, please come. Without Sanjeev की जो lyrics है, उसके बिना ये गाना अधूरा था। एक reload जो reprise version हम लोग ने किया। मैं 2 लाइन सुनाता हूँ उसका हम लोग वीडियो देखेंगे। Let's see. चेक मैंने कंपोज भी किया और मैंने गाया भी एक वर्जन और मोहित ने इसका मेन वर्जन गाया, तो दोनों देखते हैं। ओके So everybody, the video of the song, please. Thank you, sir. Thank you so very much. First of all, I would give a thanks to Anush Sharma ji, who gave me wonderful opportunity to work with. Sir, I'll come and touch your feet first. That's lovely. That's lovely. That's a lovely gesture. Everybody, big hand. Without him, it wouldn't possible. And thanks to Sanjay Sharma ji also. और आप सभी कंपोजर का अभिनंदन, संजीव रोशन जी, आप लोगों के साथ ये सारे बड़े कंपोजर्स हैं, मैंने शेयर किया। This is my first film as a composer. So just start that. Yes, let's start the song, and I would like Vedant Singh to say, just show the video. We are showing the video right now. Yes. So you want him to sing 2 lines from the song? Yeah. You want us? Yes. Let's sing. I'm playing a Pakhi. किरदार ज़रूर बोल्ड है, बट किरदार बोल्ड होने के पीछे there is a reason behind it, there is a logic behind it. We are coming with a first threesome movie in Bollywood, but there is a strong context behind it. And मैं एक छोटे से शहर की बहुत एम्बिशियस लड़की प्ले कर रही हूँ जो अपना सपना पूरा करती है, और अपने सपना पूरा करने के लिए what way she chose, कौन सा रास्ता वो चूज़ करती है, एंड फाइनली उसके साथ क्या होता है. It's a strong message again for the youngsters, but it's a complete entertaining thing.
थैंक यू। संजय सर बहुत ही कूल और बहुत ही शांत और लाइक यू नो बहुत आराम से वाले डायरेक्टर है। ही विल मेक यू अंडरस्टैंड लाइक व्हाट यू हैव टू डू एंड मोस्टली लाइक यू नो हमारा वर्कशॉप भी पहले से था, तो ही इज़ वेरी ऑर्गेनिक काइंड ऑफ पर्सन। वो आपका कैरेक्टर पहले समझा देंगे एंड देन यू हैव टू बी योर सेल्फ एंड देन यू हैव टू प्ले द कैरेक्टर। हाँ जी, प्यार का मतलब क्या होता है? प्यार का मतलब ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि हम कैसे डिफाइन करते हैं। लाइक दिव्या कैसे डिफाइन करती है, जैसे मैं कैसे डिफाइन करती हूँ प्यार को, ये बहुत अलग होगा। पाखी कैसे डिफाइन करती है प्यार को इश्क जुनून में, ये अलग है, क्योंकि पाखी का कॉन्सेप्ट और पाखी की लाइफ अलग थी। और लाइक यू नो हम फिल्म में दिखा रहे, हवस नहीं है ये, इट्स नॉट अ हवस, इट्स अ वे ऑफ लव, इट्स अ फॉर्म ऑफ लव। लाइक यू नो, और ऐसा नहीं कि पहली बार हम अगर आप पहले हम बहुत सारे बुक्स हैं, बहुत सारे ऐसे हमारी पुरानी किताबें हैं जिसमें इन सब चीज़ों का लाइक यू नो ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है और उस चीज़ को हम लेके आ रहे हैं। इनफैक्ट आज भी मैं बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स से मिलती हूँ जो ऐसी बातें करते हैं और ऐसी चीज़ें करते हैं। सो इट्स नॉट हवस, इट्स अ फॉर्म ऑफ लव। एंड क्यों हो रहा है ये, इसके पीछे ना बहुत स्ट्रॉन्ग लॉजिक है। जब आप फिल्म देखेंगे या फिल्म लाइक यू नो समझेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि वाई दे आर लविंग दिस वे। एंड अगर ये दोनों लड़के एक लड़की को एक साथ में प्यार कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? सॉरी ट्रेलर में आपने अगर ट्रेलर में देखा तो आपको शायद बोल सीन्स दिखे होंगे, लेकिन आपने नसीबा गाना देखा, उसमें आई थिंक आपको थोड़ा कैरेक्टर भी दिखा होगा, थोड़ी स्टोरी भी दिखी होगी। तो इट्स नॉट सेक्स एंड सेक्स एवरीवेयर। येस, देयर इज़ अ लाइक यू नो सेक्स, देयर इज़ अ रोमांस, देयर इज़ इश्क जुनून, देयर इज़ अ थ्रीसम, सब कुछ है मिक्सचर में, बट बैलेंस आउट है ना। आप नसीबा देखा आपने, फिर एक और गाना हमने जीत गांगुली सर का देखा, उसमें भी कहाँ सेक्स आपको दिखा? अंकित तिवारी के सॉन्ग में कहाँ सेक्स दिखा? तो कुछ चीज़ें थी जो हमें करना था, कुछ चीज़ें थी जो हमें नहीं करना था। सो इट्स अ मिक्सचर, आई थिंक इट्स अ बैलेंस। जी जी, जब मेरी अनुज जी से पहले बात हुई थी, क्योंकि अनुज जी हमको पता है कि लाइक ये बैनर कैसा और ये लाइक अभी तक कैसी फिल्में बनाते आए हैं, काफ़ी रेपुटेड बैनर है ये, देओल्स के साथ काम करते हैं और इनका खुद का एक अपना रेपुटेशन है। तो उन्होंने मुझे बड़ा सलीके से बोला था कि दिव्या एक फ़िल्म है इश्क जुनून, और लाइन सुनाई थी मुझे उन्होंने फ़ोन पे ही 1 जैन को, बोला था थोड़ा बोल्ड है, थोड़ा रोमांस है, थोड़ा आजकल का लाइक यू नो वो हमें डालना पड़ेगा, करोगी तुम? तो मैंने बोला पहले मैं स्टोरी सुनूंगी, क्योंकि लाइक यू नो जस्ट सेक्स लाइक जैसे आप वो कर रहे हैं। तो फिर हमने स्टोरी सुनी मैंने, और तो इट वॉज़ वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि दिव्या एज अ पर्सन मैं बहुत अलग हूँ, तो मैं हमेशा से ऐसे फिल्में करना चाहती थी जो मेरी पर्सनालिटी को सूट करे। लाइक आई वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉर अ फिल्म अच्छा जो एकदम शांत सी ऐसे। देन आई थॉट लाइक कि यार एक्टर क्यों बनना है मुझे जब तक मैं अपने आप को चैलेंज नहीं करूँगी। सो इट वॉज वेरी 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 चैलेंजिंग फॉर मी टू प्ले अ पाखी। मैं अगर संजय सर से आप पूछेंगे तो शुरुआत के 3 दिन में परफॉर्म ही नहीं कर पाई थी। सेट पे लोगों को लग रहा था अरे ये क्या है, अनुज जी ने किसको ले लिया, क्योंकि मैं रोती थी और मैं लाइक मुझे समझ में नहीं आता था उस लड़की का कॉन्सेप्ट और कैरेक्टर क्या कर रही है वो। बट धीरे धीरे लाइक अनुज जी की जो वाइफ है किरण मैम, उन्होंने मुझे समझाया और बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए, लाइक रेखा मैम इन उत्सव, एंड लाइक यू नो देर आर गर्ल्स एंड देर आर वुमेन्स हु हैव प्लेड लाइक यू नो वेरी बोल्ड कैरेक्टर्स अपने करियर के लाइक यू नो शुरुआत में और बीच में। फिर मैंने समझा कि अगर मुझे एक्टर बनना है तो आई हैव टू अंडरस्टैंड अदर्स लाइक यू नो कैरेक्टर। मैं दिव्या हुई ही नहीं, मैं तो पाखी थी। सो आई वाज कूल विद इट। आपने नहीं देखा क्या? अभी बहुत सारी फिल्में आई हैं। मैं सोचती यार मैंने तो कम किया है, खामखा ऐसे लोग मुझे बोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ। अच्छा, आपको लगता है कि मेरी इमेज बोल्ड बन जाएगी? आप मुझसे मिले तो आपको लग रहा है कि वो पाखी है दिव्या? इट्स ये क्वेश्चंस मैं प्रिंट में भी अभी इंटरव्यूज़ दे रही हूँ तो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि दिव्या लाइक यू नो तुम ऐसे बोल्ड कैरेक्टर। तो मैं यही बोल रही हूँ कि डिफाइन मत करो मुझे, लाइक डोंट डिफाइन मी। मुझे कोई भी डेफिनेशन अभी नहीं चाहिए। तो मेरी जर्नी है, ट्रैवलिंग अभी जस्ट शुरू हुई है। लाइक बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो बहुत बोल्ड फिल्मों से आए और आज वो बहुत अच्छा कर रहे, बहुत सारे वेरिएशंस कर रहे हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि लाइक यू नो लोग मुझे टाइपकास्ट या डिफाइन ना करें इस फिल्म से, रादर मुझे एज एन एक्टर ले। और
थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। हर्षिता जी, आपने टीआरपी के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस में आने के लिए कितना बॉलीवुड में टीआरपी के लिए टीआरपी तो सॉरी टीआरपी तो टीवी में होता है। कितना जरूरी है? डिपेंड करता है यार कि बोल्ड सीन मैं पता नहीं, और एक्टर्स के बारे में ज़रूरी नहीं है। लाइक बहुत सारे आप क्या कहना चाहते हैं मुझे समझ में नहीं आया। एक एक्टर को बोल्ड ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोल्ड करके आप लाइमलाइट में आते हो या पॉपुलर होते हो। हर तरीके से आप पॉपुलर होते हैं। कोई अपनी बोल्डनेस की वजह से पॉपुलर है, और बोल्ड को हम डिफाइन कैसे करते हैं? आज के रेट में यही चल रहा है ना, हर एक पिक्चर नहीं, इस बोल्डनेस के साथ साथ हम एक मैसेज भी साथ में लेके आए हैं। एक नहीं बल्कि 3 मैसेजेस लेके आए हैं। जो मैसेज मैं डिस्क्लोज़ कर सकता हूँ वो ये है कि हमारा यूथ जो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करके बुरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, वो कैसे इस फिल्म के ज़रिए उन्हें थोड़ा एनलाइटनमेंट मिलेगा कि इस रास्ते पर कैसी गहरी खाइयाँ हैं, वो गिर सकते हैं और उसके बाद डार्क फ्यूचर है उनका। तो वो चीज़ थ्रीसम जो हम कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, वो एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक मैसेज भी है कि आपको एक अपनी संस्कृति में रहकर ही लाइफ बितानी चाहिए, नहीं तो आप दिशाहीन हो जाएंगे, भटक जाएंगे पूरी तरह से। तो फ्यूचर एकदम डार्क है उसका। तो यही है बेसिकली जो मैं आपके सामने फ़िलहाल डिस्क्लोज कर सकता हूँ। बाकी 2 मैसेजेस और हैं जो कि आप फिल्म देखने जाएंगे तो आपको पता चलेगा। हाँ हाँ जी, उसी के बारे में मैंने अभी बताया कि जो थ्रीसम है वो वेस्टर्न कल्चर से अभी इंडिया के यूथ में भी आ रहा है। तो इसको हम कैसे एक मैसेज दिया है कि ये ऐसे डिस्ट्रैक्ट ना होइए, क्योंकि इससे आपका फ्यूचर डार्क है, जैसे कि मैंने अभी कहा। मेरा किरदार एक मल्टी मिलियनर का किरदार है जो कि एक लड़की को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगता है, और उनके रोमांस के चलते चलते कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि बीच में ट्विस्ट आता है जो कि मैं नहीं बता सकता हूँ। तो अगर आप देखेंगे जाकर तो ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं आपका मज़ा नहीं ख़राब करना चाहता हूँ एक्चुअली।